Hello, dear students. Welcome to day 6 of our daily 5 study question series. आप सबको एक बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। 6 डेज तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इजी नहीं होता, बट आप कर रहे हो। ये डेडिकेशन आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप जोन तक ले जाएगा। स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। चलो, आप बिजी हो, टायर्ड हो, लेकिन रोज के सिर्फ 5 क्वेश्चन करने से आपका कॉन्फिडेंस, कॉन्सेप्ट, क्लियरिटी दोनों अपग्रेड हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डे 6 के 5 सुपर क्वेश्चंस। The question number 1 is: a school conducted a quick reaction test. Students were asked to catch a falling scale as fast as possible. It was observed that students who were tired or distracted showed slower response. Explain why reaction time increases when a person is tired. The answer is: when we are tired, the speed of nerve impulse transmission slow down, causing delay response. The B part is: which part of the nervous system controls such voluntary actions? Cerebrum, brain का cerebrum part यानी forebrain control voluntary actions like catching a scale. C part: why is this not considered a reflex action? इसे रिफ्लेक्स एक्शन कंसिडर क्यों नहीं किया गया? Why it is not a reflex action? Because it requires thinking and conscious decision making, not an automatic spinal cord response. ये ऑटोमेटिक स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्स नहीं है। ब्रेन उसमें क्या कर रहा है? सोच रहा है और डिसीजन ले रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। The question number 2 is: a child accidentally steps on a sharp stone and immediately lifts his foot. However, he feels the pain a moment later. A. Identify the two types of actions involved. A. Reflex action, lifting the foot. जैसे ही जो है स्टोन लगा, उसने क्या करा? लिफ्ट कर लिया फुट को। एंड सेंसेशन ऑफ द पेन जो है ब्रेन बेस्ड रिस्पॉन्स, जो उसको पेन हुआ वो ब्रेन से हुआ, यानी ब्रेन ने उसको रिस्पॉन्स करवाया, वो ब्रेन का रिस्पॉन्स है। एंड बी पार्ट: व्हाई डज लिफ्टिंग द फुट अकर अर्लियर देन फीलिंग द ब्रेन? एज वी नो, रिफ्लेक्स एक्शंस फास्ट होते हैं एंड कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए हमें क्या हुआ? और जो हमारा पेन सेंसेशन है वो इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन। तो हमें क्या होगा? पहले पहले जो है रिफ्लेक्स एक्शन वाला काम होगा, फिर ब्रेन वाला। यानी हमने क्या करा? पहले लिफ्टिंग हमें पहले कर ली और फीलिंग द पेन हमें बाद में हुआ, यानी पेन हमें बाद में फील हुआ। स्टेट द एडवांटेज ऑफ दिस मैकेनिज्म। तो एडवांटेज क्या हो गई? क्विक विड्रॉल प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फर्दर इंजरी। उसने क्या करा? उसकी जो है इंजरी से होने से प्रोटेक्ट कर लिया। द क्वेश्चन नंबर 3 इज: during an online exam, a student suddenly becomes anxious. His heart beats faster, जैसा सबके साथ ही होता है, हमारे साथ भी होता है. Palms become sweaty and breathing rate increase. Then A part: which hormone is responsible for these changes? The hormone name is adrenaline. And which gland release it? Adrenal gland. Explain how this hormone helps the body in such situation. Adrenaline hormone prepare the body for fight or flight by increasing heart rate, blood flow to muscles, and energy availability, helping the students respond to stress. Now, question number 4. A gardener keeps two plants in different conditions. Gardener ने दो plants को different conditions में रखा. Plant A kept near a window with sunlight and plant B kept in a dark room. After 5 days, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? अ प्लांट ए ग्रो स्ट्रेट एंड बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट, वाइट प्लांट बी बिकम्स टॉल, थिन एंड वीक. देन विच व्हाई डज प्लांट ए बेंड? प्लांट ए बेंड क्यों हुआ? ड्यू टू द पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म. किससे कंट्रोल हो रहा है? बाय द हार्मोन ऑक्सिन विच accumulates on a shaded side. And why does plant B appear weak? Plant B appear weak, becomes weak due to kept in dark room. Because oxygen promote excessive elongation without chlorophyll formation. वो chlorophyll तो नहीं बनवा रहा, लेकिन elongation कर रहा है, तो वो क्या हो गया? लंबा तो हो गया, लेकिन क्या रहा? थिन रहा. ठीक. सी पार्ट: विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन बोथ केस? दोनों ही केस में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है? ऑक्सीन. एंड आज का लास्ट क्वेश्चन: a person injure a part of her brain in an accident.
शी कैन स्पीक, बोल भी सकती है, एंड थिंक भी कर सकती है नॉर्मली, बट कैन नॉट मेंटेन पॉस्चर और बैलेंस while walking. Which part of the brain is likely damaged? Cerebellum. Justify your answer. Cerebellum ही कंट्रोल करता है बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड posture को, जो कि अफेक्टेड हो गया. Which activities will become difficult for her? तो कौन सी एक्टिविटी उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगी? वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, साइकिलिंग, रनिंग एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स विल बी डिफिकल्ट, राइट? एंड ग्रेट, आज का टारगेट भी कंप्लीट हो गया हमारा. आपका डेडिकेशन ही आपकी स्ट्रेंथ है, और यही डेली प्रैक्टिस आपको एग्जाम स्ट्रेस फ्री बनाती है. तो स्टूडेंट्स, दिस वाज डे 6. कल मिलते हैं डे 7 के नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ. अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.